یہ فہرست اتنی طویل ہے کہ اگر میں آپ سے ڈسکس کرنے لگ جاؤں تو شاید 2 دن تک یہ پروگرام مجھے جاری رکھنا پڑے۔ پی ٹی آئی کے وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ خزانے میں زہر کھانے کے بھی پیسے نہ تھے۔ الزام لگایا گیا ہے کہ ان دوروں پر اربوں روپے خرچ ہوئے۔ اس کا ایک سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ پاکستان میں خودکشی کی شرح جو پچھلے 15 ماہ میں رہی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں رہی۔ غریب آٹے، گھی، چینی اور ضروریات زندگی کی بنیادی چیزوں کو ترس گئے ہیں۔ کرنسی کی ویلیویشنز اپریل 2022 میں $1 186 روپے کا تھا، جبکہ اگست 2023 میں $1 بڑھ کر 287 روپے کا ہو گیا۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مارچ 2022 میں پاکستان کی 13 سیاسی جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا جسے کہ پی ڈی ایم کا نام دیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی عوام اس وقت بہت ہی برے حال سے گزر رہی ہے۔ معیشت کا برا حال ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ بہت سے اینکر حضرات روز تشریف لاتے، ایک پوری ریٹ لسٹ ان کے ہاتھ میں ہوتی، آج آٹے کا یہ ریٹ ہے، آج گھی کا یہ ریٹ ہے، آج ڈالر اتنے کا ہو گیا، آج پیٹرول اتنے کا ہو گیا۔ اور اس سارے کیس کو اس طریقے سے دیکھا گیا کہ یہ اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت کی ناکامی ہے کہ ایک نااہل گورنمنٹ ہے، نا تجربہ کار ہے، انہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ عوام کے درد سے سرشار ان 13 پارٹیوں کے پی ڈی ایم نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا، اور یہ تحریک عدم اعتماد اپریل 2022 میں کامیاب ہو گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں کامیاب ہونے والی یہ پہلی تحریک عدم اعتماد تھی۔ اپنی 1.5 سال کی مدت پوری کر کے پی ڈی ایم کی حکومت بھی رخصت ہو چکی ہے۔ تو اب یہ لازم ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ معاشی کارکردگی پی ٹی آئی کی کیا تھی اور پی ڈی ایم کی کیا تھی۔ ہم نے کچھ معاشی انڈیکیٹرز 2022 اور 2023 کے جمع کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے کہ کس کی کارکردگی بہتر تھی، ایک ناتجربہ کار حکومت کی کہ ایک تجربہ کار حکومت کی۔ جی ڈی پی گروتھ کی بات کی جائے تو 2022 میں پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا، جو کہ 2023 میں کم ہو کر 0.29% رہ گیا۔ انڈسٹریل گروتھ 2022 میں 7.19% تھی، جو کہ کم ہو کر 2023 میں -2.94% ہو گئی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ 2022 میں 10.61% تھی، 2023 میں کم ہو کر یہ -8.11% رہ گئی۔ ٹوٹل جی ڈی پی 2022 میں $383 بلین تھا، جو کہ کم ہو کر 2023 میں $341 بلین ہو گیا۔ ایکسپورٹس 2022 میں $28.83 بلین تھی، جبکہ 2023 میں کم ہو کر یہ ایکسپورٹس $21.2 بلین رہ گئیں۔ ریمیٹنسز 2022 میں $26.1 بلین تھی اور کم ہو کر 2023 میں $20.5 بلین ہو گئیں۔ سروس سیکٹر کی گروتھ 2022 میں 6.19% تھی، جو کہ کم ہو کر 2023 میں 0.86% رہ گئی۔ ایگریکلچر گروتھ 2022 میں 4.4% تھی، جو کہ 2023 میں کم ہو کر 1.55% رہ گئی۔ سی پی آئی انفلیشن جو کہ 2022 میں 11% تھی، بڑھ کر 2023 میں 28.2% ہو گئی۔ فوڈ انفلیشن 2022 میں 11.8% تھی، جو کہ 2023 میں بڑھ کر 37.9% ہو گئی۔ ٹوٹل لیکوڈ فاریکس ریزروز اپریل 2022 میں $16.4 بلین تھے، جو کہ کم ہو کر اگست 2023 میں $13.4 بلین رہ گئے۔ کرنسی کی ویلیویشنز اپریل 2022 میں $1 186 روپے کا تھا، جبکہ اگست 2023 میں $1 بڑھ کر 287 روپے کا ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت جو کہ اپریل 2022 میں 149.86 روپے فی لیٹر تھی، آج 272 روپے پر لیٹر ہو چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب 42 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تھے، جو صرف 1.5 سال کے بعد آج 4 ارب 20 کروڑ ڈالرز کے قریب رہ گئے ہیں۔ اپریل 2022 سے اب تک مجموعی طور پر بجلی کی بنیادی ٹیرف میں
18.39 रुपए फी यूनिट तक का इजाफा किया गया है। नेपरा की दस्तावेजात के मुताबिक पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से जुलाई, अगस्त और अक्टूबर 2022 में और 22 जुलाई 2023 में बिजली के बुनियादी टैरिफ में मरहलावार इजाफा किया गया। गुज़िश्ता माह बिजली का फी यूनिट 7.5 रुपए तक महंगा किया गया, जबकि मुस्तकबिल करीब में मजीद इजाफे का इंदिया भी दिया जाता रहा है। टेक्सटाइल, जो कि मुल्क का बड़ा बरामदी शोबा है, आज इसकी बरामदाद शदीद गिरावट का शिकार है। बड़े पैमाने के सनती यूनिट्स धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, जिसके नतीजे में बेरोजगारी में इजाफा जाहिरी सी बात है। पीडीएम हुकूमत ये दावा करती रही है कि उसने मईशत बचाने के लिए सख्त फैसले लिए हैं, लेकिन इन सख्त फैसलों के बावजूद मईशत कहीं बचती नजर नहीं आ रही। इसहाक डार साहब को खुसूसी तौर पर इंग्लिस्तान से वापस बुलाया गया कि वो एक तजर्बाकार वजीर खजाना है और वो इस मईशत को सीधा करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अशाए खुर्दोनोश और तवानाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी है। पिछले 1.5 साल के दौरान सरमायाकारी पर जो मनफी असरात मुरतब हुए और कारोबारी एतमाद में जो गिरावट आई है, वो इससे पहले देखी नहीं गई। पीडीएम हुकूमत की 1.5 साला कारकर्दगी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 51 सफ़हात पर मुश्तमिल एक वाइट पेपर शाया किया है, जो पीडीएम हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। पीटीआई के वाइट पेपर में कहा गया है कि खजाने में जहर खाने के भी पैसे न थे, लेकिन वजीर आजम, वजीर खारजा और काबीना के अरकान दुनिया भर में सरो तफरीह करते रहे। इल्जाम लगाया गया है कि इन दौरों पर अरबों रुपए खर्च हुए। हुकूमत ने 90 रोज में इलेक्शन के आईनी हुक्म से इन्हिराफ किया। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। हमारी हुकूमतों ने IMF और वर्ल्ड बैंक से इतने कर्जे ले लिए हैं कि हमारी आने वाली नस्लें इसकी कीमत चुकाती रहेंगी। अगरचे हमें गरीब मुल्क हैं, लेकिन हमारी अय्याशियां दीदनी हैं। असेंबली अरकान समेत वज़रा और दीगर आला हुकूमती ओहदेदारान को पेट्रोल और बिजली मुफ्त मिलती है, जबकि इनकी कीमत बेचारे गरीब अवाम अदा करते हैं। इसके अलावा गरीब आटे, घी, चीनी और ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ों को तरस गए हैं। मुआशी इशारों के इन तकाबली जायज़े के बाद हम आगे चलते हैं। पीडीएम हुकूमत ने सियासी तौर पर क्या खोया, क्या पाया, उनके दौर में अमन व अमान के हालात कैसे रहे। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर जन्म लेती नजर आ रही है। इसके अलावा पीडीएम हुकूमत की ज्यादातर तवानाई पीटीआई को न्यूट्रलाइज करने में खर्च होती रही। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत से मुल्कों के दौरे किए, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश भी की। इमरान खान पर बहुत सख्त रवैया रखने का इल्जाम भी लगाया जाता था। ये तासुर नई हुकूमत ने दूर करने की कोशिश की। पीडीएम हुकूमत ने बार बार IMF से रुजू किया, बहुत से दोस्त ममालिक के पास गए, क्योंकि मुआशी बहरान बहुत शदीद था। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, लेकिन डिफॉल्ट को बचाने के चक्कर में पाकिस्तान मुआशी पस्ती के दलदल में धंसता ही चला जा रहा है। पीडीएम हुकूमत ऐसे कोई इक़दाम नहीं ले सकी जिससे मुल्क की मईशत थोड़ी सी भी बेहतर हो। इसका एक सबसे बड़ा इंडिकेटर यह है कि पाकिस्तान में खुदकुशी की शरह जो पिछले 15 माह में रही है, इससे पहले कभी नहीं रही। अवाम महंगाई और गुर्बत से तंग आ गए हैं और उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं, इसलिए अपनी जान भी ले लेते हैं। और बाज़ वाक़यात तो ऐसे भी दिखाई दिए कि पूरे का पूरा ख़ानदान मुश्तरका खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। कानून साजी पे भी देख लेते हैं, क्योंकि मुक़न्नना का जो कि असेंबलीज़ हैं, उनका असल मकसद कवानीन बनाना होता है। पीडीएम हुकूमत ने भी बहुत से कवानीन बनाए और बहुत से कवानीन में तरामीम की। ये फहरिस्त इतनी तवील है कि अगर मैं आपसे डिस्कस करने लग जाऊं तो शायद 2 दिन तक ये प्रोग्राम मुझे जारी रखना पड़े। और हैरत की बात यह है कि इसमें से ज़्यादातर बिल्स वो हैं जो कि आखिरी कुछ रोज़ में, आखिरी 1-2 हफ्तों में पेश किए गए हैं। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए 20 यूनिवर्सिटीज़ मंजूर की गई हैं, उनके बिल पास किए गए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी से रिलेटेड बिल्स हैं। नई यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताया है कि बन रही हैं। मीडिया और प्रेस के बारे में बहुत से बिल हैं।
जुडिशरी के बारे में कुछ बिल्स हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इस तरह के और बहुत से बिल हैं, IPPs के मुतालिक बिल्स हैं, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, सेनेटर्स की मराआत के बारे में बिल्स हैं, लेकिन अवाम के बारे में कोई बिल नहीं है। असेंबलियां तहलील हो चुकी और इलेक्शन कमीशन पर अगले 90 दिन में इलेक्शंस कराना कॉन्स्टिट्यूशनली फर्ज है। लेकिन सियासी ईवानों में जो बाज़गश सुनाई दे रही है उससे ये दिखाई नहीं देता कि अगले 90 रोज में इलेक्शंस होंगे। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि निगरान वजीर आजम कौन होगा, निगरान सेटअप में कौन लोग आएंगे। इसमें 2 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। एक जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम है जो कि मुल्तान के रहने वाले हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के कज़न हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लॉ किया हुआ है, इसके अलावा फॉरेन सर्विस में रहे, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रहे और इसके अलावा अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे। दूसरा नाम जो सामने आ रहा है वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से है, उनका ताल्लुक भी मुल्तान से है। 2004 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उनको नॉमिनेट किया हाई कोर्ट के जज के तौर पर और उसके बाद वो तरक्की करके 2013-14 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर हुए। उर्रा इन दोनों में से किसके नाम निकलता है इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है, ये इक़्तिदार उनके लिए गुलाब का बिस्तर नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल पीरियड है। पाकिस्तान बहुत से मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सोसाइटी के अंदर एक बहुत शदीद किस्म की पोलराइजेशन है, वक्त अच्छा नहीं है। वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश सिर्फ और सिर्फ यही होगी कि सबसे पहले पाकिस्तान का सोचिए, इसकी आवाम का सोचिए। तारीख बहुत बेरहम है, वो किसी को नहीं बख्शती। कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपको अच्छे नाम से याद रखें, वगरना बकौल फैज़ तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़ वतन, जो तेरे आर्ज़े बेरंग को गुलनार करें। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें। तेरे ईवानों में पुरजे हुए पैमा कितने, कितने वादे जो ना आसूदा इकरार हुए। कितनी आंखों को नजर खा गई बदख्वाबी की, ख्वाब कितने तेरी शाहराहों में संगसार हुए। बला कशान मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ, जो मुझ पे गुजरी मत उससे कहो, हुआ सो हुआ। मुबादा हो कोई जालिम तेरा गिरे बागीर, लहू के दाग तो दामन से धो, हुआ सो हुआ। हम तो मजबूर वफा है मगर है जाने जहां, अपने उशाक से ऐसे भी कोई करता है। तेरी महफिल को खुदा रखे अबद तक कायम, हम तो मेहमान हैं घड़ी भर के, हमारा क्या है।